Hi friends, today we will see biomedical waste management. Biomedical waste management is very important in every hospital, and today we briefly discuss how we can manage biomedical waste in our hospital. दोस्त, आज हम देखेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। ये हर हॉस्पिटल के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं एंड इसमें हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम कैसा बायोमेडिकल मैनेज कर सकते हैं। In this first topic is definition of biomedical waste. What is biomedical waste? Biomedical waste is the waste generated by the hospital. It means it is generated by lab or any other area in the hospital. That is called biomedical waste. Biomedical waste क्या होते हैं? जो वेस्ट हमारा हॉस्पिटल में किसी एरिया से बन जाते उसको हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। मे बी ये हो सकते हैं कोई प्रोसीजर के बाद, कोई इंजेक्शन के बाद, जो भी करने के बाद जो वेस्ट आएगा उसको बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस B&W मैनेजमेंट प्रोसेस। द प्रोसेस विल स्टार्ट अप इन हॉस्पिटल एंड वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी स्टेप. And first step is hospital. In the hospital setup only it will produce the biomedical waste, and after that we will segregate it, because we will segregate in the ward. The ward nurses and all, they will segregate it. After that it will store in a common storage room in hospital setup, and in common storage point from there will be a transport vehicle is there. Through that vehicle we will transport it into main storage area, and after that it will go for the treatment and it will dispose. These are the main process of B&W biomedical waste management process. ये है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस. इन दिस हम लोग देखेंगे हॉस्पिटल से कैसा बन जाते हैं, उसके बाद कैसा सेपरेट करना है, कैसा इनको स्टोरेज करना है, कैसा ट्रांसपोर्ट करना है, कैसा डिस्पोज करना है, ये सब कुछ होते हैं. ये है प्रोसेस. इस प्रोसेस के थ्रू ये बायोमेडिकल डिस्पोज हो जाते हैं. ये प्रोसेस नहीं होते तो बायोमेडिकल में दिक्कत आ जाएंगे, फिर हमारे हॉस्पिटल में भी प्रॉब्लम आने का चांसेस है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. हाउ वी हैव टू डिस्पोज बायोमेडिकल वेस्ट अकॉर्डिंग टू कलर कोड. In that, 4 color codes are there, and each color code having some different waste methods. And in this, we will study first is blue. In blue color, we will dispose broken and unbroken glasses, and we will use some cardboard and all for that, because in glass they can cut the plastic material or polythene. That's why we are using cardboards. And second one, red. In red box we are dispose all the infected plastics like IV set, gloves, tubings and catheters, all the things, all the plastic material we are how to dispose in red. And next color code is yellow. In yellow we will dispose human anatomical waste or pathological waste. In that it is include gauze piece, blood contaminated things or other body fluids, cotton gauze, linen, dressings, all the things we will dispose in yellow. And black, it is general waste, means it is like general waste is kitchen waste, all the things we will dispose in the black. And other one biomedical is there, that is called puncture proof container. In puncture proof container we will dispose all the sharp instrument like needles, sharp instrument like blades, all the things we will dispose in that. अभी हम देखेंगे डिस्पोज कैसे करना है बायोमेडिकल, क्योंकि इसमें अलग अलग कलर होगा, अलग अलग कलर में अलग अलग चीज़ जाएगा, उस हिसाब से हम देखेंगे. उसमें पहला है ब्लू कलर में क्या जाएगा. ब्लू कलर में जाएगा जितना भी ग्लास है, ग्लास मटेरियल जाएगा, वो एम्ब्यूल हो सकते हैं और वो वायल हो सकते हैं. ये सब कुछ जाएगा आपका ब्लू में. ये हम लोग कार्डबोर्ड में रखते हैं. कार्डबोर्ड क्यों रखते हैं? ब्लू जो इंस्ट्रूमेंट के वजह से, मतलब जो ग्लास के वजह से वो कट हो सकते हैं. एंड नेक्स्ट है हमारा अगला है रेड में क्या क्या चाहिए. रेड में जितना भी प्लास्टिक है वो जाएगा, ग्लव्स ये सब कुछ जाएगा. फिर येलो है, येलो में हमारा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट मीन्स जितना भी ब्लड का रिलेटेड चीज़ होते हैं वो जाएगा.
एंड ब्लैक में जाएगा जनरल वेस्ट, जितना भी जनरल वेस्ट है वो सब कुछ जाएगा। उसके बाद एक स्पेशल कंटेनर है, उसको बोलते हैं पंचर प्रूफ कंटेनर। उसमें जाएगा हमारा जितना भी ब्लेड, शार्प इंस्ट्रूमेंट, ब्लेड, नीडल्स, ऑल द थिंग्स हम लोग उसमें जाएगा शार्प इंस्ट्रूमेंट, मतलब पंचर प्रूफ कंटेनर में। Now we will discuss safety and education, because when we are transporting or take care of biomedical, we have to do the safety. In that, first one is like personal protective equipment. We have to wear personal protective equipment while we are doing this separation or transportation. ये है सेफ्टी एंड एजुकेशन। उसमें हम लोग देखना पड़ेगा हमारा जो सेफ्टी को, उसमें हम लोग पहनना पड़ेगा पीपी, पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को पहनना पड़ेगा, क्योंकि अपना प्रोटेक्ट नहीं किया तो हमको भी इन्फेक्शन होने का चांस है। These are all special safety things we are using. We will use latest surgical gloves, heavy duty rubber glove, and aprons, goggles, and special boots. All the things we will wear in safety education. Because in safety education, why means we have to do our safety. Otherwise, we will got infection and we will get infected. ये है सेफ्टी एजुकेशन। सेफ्टी एजुकेशन में क्या क्या पहनना है, स्पेशल में क्या क्या पहनना है, ग्लास पहनना है, कभी कभी बूट पहनना पड़ेगा, लैटेक्स ग्लव्स नहीं पहनना है, दूसरा ग्लव्स पहनना है। उसमें हम लोग को नीडल का स्टिक इंजरी हो सकते हैं जब हैंडल करने के टाइम, इसलिए हम लोग इसके ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो हमको इन्फेक्शन हो जाएगा एंड इन्फेक्ट हो जाएगा। Now we will discuss the labels or symbols of biomedical. Biomedical having two symbols. One is this, ये है biomedical symbol है, and second one is like cytotoxic symbol. It's we are using C type because when we are using chemotherapy drugs we have to use this symbol to dispose chemotherapy drugs. ये होते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग का सिंबल। इसमें हम कीमोथेरेपी ड्रग डालना है, क्योंकि कीमोथेरेपी ड्रग्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी हमको हार्मफुल हो सकते हैं, इसलिए उनको अलग से सेपरेट रखना पड़ता है। इन दिस वी विल डिस्कस विच टाइम यू हैव टू कलेक्ट द बैग, डिस्पोज द बैग. The bag have to dispose when it is filled 3/4, and we don't have to wait it is full filled, because it will cause many issues. That's why we have to collect the bag it is 3/4 filled. ये है गुड प्रैक्टिस। इसमें है हमारा बैग कलेक्ट करना है, ये 3/4 फिल होने के बाद फुल फिल होने के लिए वेट नहीं करना, वो हमको दिक्कत करा देंगे, इसलिए हम लोग ये 3/4 फिल होने के बाद हमको ये डिस्पोज करना पड़ेगा। इन दिस वी विल डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हैविंग सम क्राइटेरिया, दैट मीन्स एवरी हॉस्पिटल देयर शुड बी ए टाइम प्लान व्हेन वी हैव टू ट्रांसपोर्ट दिस बायोमेडिकल वेस्ट एंड विच रूट वी हैव टू कलेक्ट और ट्रांसपोर्ट दिस वेस्ट। ये है ट्रांसपोर्टेशन। इसमें थोड़ा क्राइटेरिया है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसमें ये मतलब है किस टाइम में टाइम प्लान होना है, किस टाइम में हमको ट्रांसपोर्ट करना है, किस जगह से ट्रांसपोर्ट करना है, क्या क्या हमको देखना पड़ेगा, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन दैट फर्स्ट वन इज व्हेन वी आर ट्रांसपोर्ट बायोमेडिकल वी हैव टू वियर ऑल द पीपी, अदरवाइज वी गॉट इन्फेक्शन एंड इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्ट इन ए क्लोज्ड ट्रॉली। इसमें पहला है ट्रांसपोर्ट हम करने के टाइम हम लोग पूरा पीपी पहनना है एंड एक क्लोज्ड ट्रॉली में इनको ट्रांसपोर्ट करना है, नहीं तो पेशेंट और हमको इन्फेक्शन होने का चांसेस है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन वी आर ट्रांसपोर्टिंग बायोमेडिकल इट विल बी अवे फ्रॉम पेशेंट एरिया, दैट मीन्स it will transport far away from patient area, otherwise patient got infected. ये बायोमेडिकल ट्रांसपोर्ट करने के टाइम हम ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमारा पेशेंट की हॉस्पिटल का पेशेंट का सामने से ट्रांसपोर्ट नहीं करना, इससे दूर से ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन होने का चांसेस है। द लास्ट टॉपिक इज फाइनल जर्नी, फाइनल ट्रांसपोर्टेशन. In this, some agencies are there, their vehicle will come to our hospital. For that, we have to weigh the biomedical and we have to record the weight of the biomedical, and after that we have to transport through this vehicle. ये है फाइनल जर्नी। इसमें हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट को भेज देते, कोई कंपनी होते इसमें, इससे पहले हम लोग वेट करना पड़ेगा, वो हम लोग रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
Thank you for watching my video. If you having any doubt, just comment me, and please subscribe my channel Medical Knowledge for You.